વેલકમ ટુ માય યોગી એજ્યુકેશન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી વિષય હિન્દી કક્ષા 8 તારીખ 14/9/2024 ને દિને લેવાનારી આ એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ મોડેલ પેપર। સ્ટુડન્ટ્સ, મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશિપ પરીક્ષામાં પણ હિન્દી વિષયમાંથી 5 માર્ક્સનું પૂછાય છે। તો અહીં જે ચેપ્ટરો પૂછાવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ચેપ્ટરો છે 1 થી 6 ચેપ્ટરોમાંથી જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશિપ પરીક્ષામાં પણ પૂછાશે, NMS માં પણ પૂછાઈ શકે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપૂર્ણ ચેપ્ટરોના જે ક્વેશ્ચનો છે એમાંથી જે MCQ છે એ ધ્યાનથી વિદ્યાર્થી મિત્રો સાંભળો અને તમારી નોટબુકમાં પણ લખી લો। ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટર છે તેરી હે જમી, પ્રાર્થના ગીત છે, ઈર્દગાહ, કહાની, પ્રેમચંદ, અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ, ડોક્ટર કોકિલા પારેખ, ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો, સંગાન છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી, સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે, સાક્ષાત્કાર ભરત એકાંકી છે, રાજા લક્ષ્મણસિંહ એમના રચયિતા છે। તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2, अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो जवाब है ईश्वर की इच्छा से दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी तो सर्वप्रथम चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक पण कर दो। तो જોઈએ આગળ ક્વેશ્ચનો। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो जवाब है ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला सर्वशक्तिमान है। बूढ़ी अम्मा को क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियों पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज क्यों लगती है? तो हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज लगता है क्योंकि उससे रोटियां तवे पर से उतार कर चूल्हे में सेक सकते हैं। इसके अलावा कोई आग मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकालकर उसे दे सकते हैं। बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अमीना को क्रोध क्यों आया? अमीना को क्रोध आया क्योंकि हामिद मेले से खाने पीने के लिए कोई किसी चीज न खरीदकर एक चिमटा ले आया था। सुनीता विलियम्स कैसे बनी? उत्तर है माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो विद्यार्थी मित्रों, खास सुनीता विलियम्स નું નામ આવે છે। તો હાલમાં જ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો પણ છો કે સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે એ સ્પેસ શટલમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતરિક્ષમાં ગઈ છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં હજી પણ છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, 5 જૂને સુનીતા વિલિયમ્સ ગઈ હતી અને હજી પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ અંતરિક્ષમાં જ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ બધાએ દુઆ માંગવી કે જે ભારતની સુનીતા વિલિયમ્સ, ભારતની અને ખાસ આપણા ગુજરાતની સુનીતા વિલિયમ્સ એ સહી સલામત વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછા આપણા પૃથ્વી પર આવે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોડે રહે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પણ દુઆ માંગવી કે સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે હાલમાં પણ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતરિક્ષમાં ફસાયેલી છે, બુચ વિલ્મોર અને સુનીતા વિલિયમ્સ બંને હજી ત્યાં ફસાયેલા છે। તો આપણે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અને દરેક જે ગુજરાતી વિદ્યાર્થી મિત્રો અને પૂરા વર્લ્ડની વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરા વર્લ્ડે પણ દુઆ માંગવી જોઈએ કે સુનીતા વિલિયમ્સ સહી સલામત પૃથ્વી પર આવે। नेक्स्ट જોઈએ, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? तो उत्तर, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। 8, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। विद्यार्थी मित्रों, તમને ખબર જ હશે આપણા જે ભારતીયો છે 4 ભારતીયો જે છે એ
અંતરિક્ષમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીને પણ પાછા આવ્યા છે. એમાં સુનિતા વિલિયમ્સ અને કલ્પના ચાવલા જે છે, કલ્પના ચાવલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર જ છે કે જ્યારે અંતરિક્ષમાંથી પાછા ફરતી વખતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે એક્સપાયર થઈ ગયા છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવું એ પણ. અને સુનિતા વિલિયમ્સના કલ્પના ચાવલા એ બંને મિત્રો પણ હતા. नेक्स्ट જોઈએ, सुनीता बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी? तो सुनीता बचपन से दौड़, तैराकी, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. भारतीय नारियों को सुनीता से क्या सीख मिलती है? भारतीय नारियों को सुनीता से यह सीख मिलती है कि कुछ स्थानों पर पहुंचने के लिए उन्हें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए. कवि हरिप्रसाद माहेश्वरी ने किस शुभ संपत्ति कहा है? किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है. धरा के सपूतों नए राग और गान किसमें भरेंगे? स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है. धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे. डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं? डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं. नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा? ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान किया जाएगा. डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે પણ જો જીવનમાં સફળતા મેળવવાની રહેશે તો ડોક્ટર કલામના શબ્દો યાદ રાખવા કે આપણે ભરપૂર મહેનત કરવી જોઈએ. ધોરણ 8માં પણ સારા માર્ક્સે પાસ થવા માટે, જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશિપ પરીક્ષામાં પણ પાસ થવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો સખત મહેનત કરવી જોઈએ છે. બધા જ વિષયો, ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાનના પણ દરેક વિષયોને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે રીડ કરવાનું રહેશે. એમસીક્યુ પણ તૈયાર કરવાના રહેશે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર જ્ઞાન સાધના NSS ની પણ સંપૂર્ણ તૈયારી કરવામાં આવે છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ ડોક્ટર કલામના જે શબ્દો છે, जी तोड़ मेहनत, साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, दृढ़ संकल्प पण આપણામાં હોવો જોઈએ કે જ્ઞાન સાધના પરીક્ષામાં પાસ થવાનું છે, NSS માં પણ પાસ થવાનું છે, મેરિટમાં પણ આવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમણે પણ હજી મહેનતને સ્ટાર્ટ નથી કરી તો એ પણ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 8માં ભણતા વિદ્યાર્થી મિત્રો મહેનતને સ્ટાર્ટ કરી દો. જોઈએ આગળ હવે, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है. महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी. दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चे को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारी कुल की भी निंदा होती है. उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया. दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरन से क्यों करते हैं? दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरन से करते हैं क्योंकि जैसे मुख तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी है या अन्य स्त्रियां, यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है. शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री थी. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखिए. आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अपने सोच के अनुसार आप लिख सकते हैं. तो मेरे मत सृष्टि में ईश्वर की सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिससे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिससे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? आंसर है इसका कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थलों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. विद्यार्थी मित्रों, वीडियोना अंत सुधी बन्या रहेशो. ધોરણ 8માં તારીખ જે 14
9/2024 દિને જે એકમ કસોટી તમારી લેવાના છે હિન્દી વિષયની, એમાં જે વ્યાકરણ પૂછાશે એ વ્યાકરણ પણ આપણે જોઈશું. તો જોઈએ આગળ, મેલે કા વર્ણન અપને શબ્દો में कीजिए. તો અહીં સંપૂર્ણ જે વર્ણન પર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, આપકે મનપસંદ त्योहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જે ત્યોહાર જે તહેવાર ગમે છે તેમનું તમારે હિન્દીમાં વર્ણન કરવાનું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, સુनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए. तो અહીં उत्तर છે, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है, उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई. इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई. कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए. इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है. साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई है. नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स की तरह आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो विद्यार्थी आ पण તમારો જે ક્વેશ્ચન છે જાતે લખવાનો રહેશે કે તમે શું બનવા માંગો છો. ડોક્ટર બનવા માંગો છો, એન્જિનિયર બનવા માંગો છો, વકીલ બનવા માંગો છો, જજ બનવા માંગો છો? તો વિદ્યાર્થીઓ ફટાફટ તમે પણ કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે તમે શું બનવા માંગો છો. જોઈએ આગળ, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहेंगे? तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के समाज में सम्मान, अधिकार और अवसर प्रदान करना चाहूंगा. भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए, कानूनी व्यवस्था को सख्त करना चाहिए, जन निर्माण के कार्य में उनका सहायक बनूंगा, समाज को शिक्षित कराऊंगा, शिक्षा में सुधार, शिक्षा की प्रणाली में सुधार कर देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहूंगा, आर्थिक विकास, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहूंगा. नेक्स्ट જોઈએ, उठो धरा के अमर सपूतों कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है कि कविता में हमें सीख मिलती है कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण करें. वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें. नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, खास આ પણ મોસ્ટ ટાઈમપી ક્વેશ્ચન છે કે પોતાના લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે શું શું કરવું જોઈએ. તો અહીં સંપૂર્ણ આન્સર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों? तो आंसर है, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और बेरोजगारी है. भारत में अभी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं और बेरोजगारी दर भी बहुत अधिक है. इसके कारण जैसे कि शिक्षा की कमी, कौशल की कमी और आर्थिक अवसरों की कमी. इसके अलावा भारत को सामाजिक धार्मिक असमानता, भ्रष्टाचार और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. लेकिन गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. तो અહીં સંપૂર્ણ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. નેક્સ્ટ જોઈએ 11, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो એમનો પણ જે આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડિયો પોઝ કરીને પણ તમે સંપૂર્ણ આન્સર રીડ કરી શકો. નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રશ્ન 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए. ईश्वर प्रसन्न होकर दूसरों के लिए 5 वरदान मांगने को कहे तो आप कौन से वरदान मांगना चाहोगे? तो અહીં સંપૂર્ણ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે શું વરદાન માંગો. ઈશ્વર જો તમને પસંદ થઈ જાય તો शिक्षा और ज्ञान, स्वास्थ्य और सुखद जीवन, सामाजिक समरसता और शांति, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता. नेक्स्ट જોઈએ, सैनिक से साक्षात्कार करते समय आप देश की रक्षा के संबंधित कौन से 5 सवाल पूछना चाहोगे? तो देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उसे कैसे पूरा करोगे? आप देश की रक्षा के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण और साजो सामान का उपयोग करते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सेना को और अधिक सख्त बनाने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है? तो અહીં સંપૂર્ણ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. નેક્સ્ટ જોઈએ, राष्ट्र के विकास में आप क्या योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर विधान लिखिए, 5 विधान लिखिए. तो અહીં પણ સંપૂર્ણ આન્સર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, વિદ્યાર્થીના સંપૂર્ણ પીડીએફ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં ફ્રીમાં મળી જશે. नेक्स्ट જોઈએ, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उनसे राष्ट्रहित के दौरान कौन से 5 सवाल पूछोगे? नेक्स्ट જોઈએ હવે,
यदि आपको वैज्ञानिक मिले तो आविष्कार से संबंधित कौन से 5 सवाल पूछोगे? तो આ પણ સંપૂર્ણ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर शब्दों का प्रयोग कीजिए. मालिक. उत्तर मालिक એટલે અધિપતિ, અધિકારી, નાથ, સ્વામી. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે એ શબ્દો તમને સમાનાર્થી શબ્દોના જવાબ આપો એ રીતે પણ પૂછાઈ શકે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક શબ્દોને ધ્યાન રાખો. તો અહીં માલિકનો અર્થ થાય છે અધિપતિ, અધિकारी, नाथ અને સ્વામી. तो वाक्य प्रयोग છે कंपनी के मालिक ने नए कर्मचारी को नियुक्त किया. नेक्स्ट रहमत. रहमत એટલે दया, अनुकंपा, कृपा. वाक्य प्रयोग भगवान की रहमत से हमें सफलता मिली. नेक्स्ट आफत. आफत એટલે विपदा, संकट. वाक्य प्रयोग बाढ़ ने पूरे शहर में आफत मचा दी है. जिस्म शरीर, काया, देह. उसने अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए जिम में शुरू कर दिया. नेक्स्ट बख्शीश. पुरस्कार, इनाम. वह अपने काम के लिए बख्शीश की उम्मीद करता था. कुबेर पैसादार. हमारे गांव का सेठ बहुत पैसेदार था. सिजदा सजदा. मुसलमान नमाज करते समय ईश्वर के सामने सिजदा करते हैं. निगोड़ी बेचारी, लावारिश, अभागी. मेरी निगोड़ी बहन के बारे में सोचो. शानी समान, तुल्य. लोकतंत्र में सबसे शानी व्यवहार किया जाता है. सबील मार्ग, सड़क. हवाई जहाजों के भी अपने सबील होते हैं. परीक्षण जांच, निरीक्षण. एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म कुंडली का परीक्षण किया. नेक्स्ट चहीती प्यारा, प्रिय, आत्मीय. चहीती जगह पर जाना मुझे बहुत पसंद है. दिक्कत तकलीफ, तंगी, कष्ट. उसे अपने काम में दिक्कत हो रही है. प्रशिक्षण प्रशिक्षा, ट्रेनिंग. प्रशिक्षण से हम अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं. शान प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा. राम शान में कोई भी कभी राम शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट निर्माण रचना, उत्पादन, बनावट. वाक्य प्रयोग निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं. प्रायः अक्षर अधिकतर. सावन में प्रायः पानी बरसता है. उद्यान वाटिका, उपवन. इस राष्ट्रीय उद्यान में विलक्षण जंगली जंतु देखे जा सकते हैं. पुनः फिर दोबारा, अनंतर. अब यह काम मुझे पुनः करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्फूर्ति जल्दी, शीघ्रता, फुर्ती. उसके शरीर में स्फूर्ति थी और हृदय आनंद से भरा था. दस्तकार शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर. वाक्य प्रयोग विद्यार्थी મિત્રો અહીં જે બાકીના જે વાક્ય પ્રયોગ છે વિરાસત એટલે વિરાસત અને ધરો. ખાકા એટલે ખાકા અને નકશા. સામરિક એટલે युद्ध से संबंधित रखने वाले. जीवंत जीवंत એટલે સજીવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે વાક્ય પ્રયોગ બાકી છે એ તમારે જાતે કરવાના રહેશે. नेक्स्ट જોઈએ प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए. सेठ सेठानी. सेठ ने अपने व्यवसाय में बहुत मेहनत की. नौकर नौकरानी. नौकर का काम अपने मालिक की सेवा करना. पुत्रवती पुत्रवान. संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई. श्रीमती श्रीमान. श्रीमती शब्द मान सम्मान का प्रतीक है. नेत्री नेता. कोलकाता में शोभा इस आंदोलन की नेत्री थी. विधवा विधुर. विधवा के बच्चों का सहायता की आवश्यकता होती है. स्वामी स्वामिनी. स्वामी का अधिकार है अपनी संपत्ति का निर्णय लेने का. विधत्री विधाता. विधात्री ने उसके जीवन को सुखी बना दिया. फूलदान फूलदानी. फूलदान को सजावटी वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है. वर वधू. वर ने अपनी पत्नी को सुखी बनाने का वचन दिया. सास ससुर. सास ने अपनी बहू को घर के काम सिखाया. सम्राट सम्राज्ञी. सम्राट ने अपने राज्यों को सुखी और समृद्ध बनाया. साधु साध्वी. साधु ने अपने जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया. नर मादा. नर और नारी दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण है. पति पत्नी. पति ने अपनी पत्नी को सुखी बनाने का वचन दिया. कर्ता करती. सरल शब्दों में किया करने वाला
को कर्ता कहते हैं। इंद्र इंद्राणी, इंद्र ने अपने वज्र से दानव को पराजित किया। नेक्स्ट, देवर देवरानी, देवर ने अपने भाभी की मदद की। बलवान बलवती, बलवान व्यक्ति किसी की भी चुनौती का सामना कर सकता है। ननंदोई ननंद, ननंदोई भाभी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वे, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो અહીં ગદ્યાંશ આપવામાં આવ્યો છે એ પ્રમાણે તમને બાળકો પરીક્ષામાં પણ પૂછાશે। પેરેગ્રાફમાં તમને આ રીતે ગદ્યાંશ આપવામાં આવશે અને એમના નીચે જે ક્વેશ્ચનો છે એમનો ઉત્તર આપવાનો રહેશે। તો જોઈએ અહીં, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा दूसरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई को जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो जवाब है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों को और वृद्धों को शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। यदि सभी लोग अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज की उन्नति होगी। विलोम शब्दों लिखिए। आश्रित अवनति, आश्रित अनाश्रित, अवनति उन्नति। અહીં જે परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बताइए। भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। सभी धर्मों का मूल क्या है। परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, परोपकार की महिमा। दिए गए काव्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहे अपने पथ पर सब कठिनाइयों तूफानों में। तो અહીં પણ તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો કાવ્ય જે આપવામાં આવશે અને એમના નીચે જે ક્વેશ્ચનો આપવામાં આવશે એમના કાવ્યો રીડ કરીને આન્સર આપવાના રહેશે। हिमालय हमें क्या संदेश देता है। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं कठिनाई आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं वही असंभव को ही संभव कर दिखाते हैं। इस काव्य के योग्य शीर्षक हिमालय का संदेश। तो विद्यार्थी मित्रों, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी तो सौप्रथम चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक पण कर दो। विद्यार्थी मित्रों, अपनी यूट्यूब चैनल पर ધોરણ 3 થી ધોરણ 10 સુધીની તમામ એકમ કસોટીના મોડેલ પેપર મૂકવામાં છે અને એ પ્રશ્ન બેંક જે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા જાહેર થાય છે, પ્રશ્ન બેંકનું પણ સોલ્યુશન આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકવામાં છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આવનારી પ્રથમ પરીક્ષાના મોડેલ પેપર પણ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને સંપૂર્ણ ફ્રીમાં મળી જશે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી જ્ઞાન નવી માહિતી સાથે। જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વંદે માતરમ।